ચાલો ચાલો જલ્દી જલ્દી બાળસભામાં જઈએ. સ્વામી બોલાવે છે. ચાલો બાળસભામાં જઈએ. સત્સંગ અને સંસ્કારોના પથ શીખવા જઈએ. ચાલો ચાલો જલ્દી જલ્દી બાળસભામાં જઈએ. હા હા, આવો આવો બાળકો. આજની આ બાળસભામાં આપ સૌનું ભાવભર્યું સ્વાગત છે. સૌને મારા જય સ્વામિનારાયણ. અરે વાહ, તમે બધા તો આજે સરસ તૈયાર થઈને આવ્યા છો ને. તો ચાલો સૌ આપણે પણ બાળસભાની શરૂઆત એવી સરસ જયના દ્વારા કરીએ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ભગતજી મહારાજની જય. શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. યોગીજી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. મહંત સ્વામી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જય. અરે બાળ મિત્રો, જ્યારે આપણે શાંત પાણીમાં એક પથ્થર નાખીએ છીએ ત્યારે તેમાં અસંખ્ય વમળો ઉત્પન્ન થાય છે. તેમ આપણું મન પણ અસંખ્ય વિચારોના તરંગોથી ભરાયેલું છે. તેને શાંત અને સ્થિર કરવા માટેનું સુંદર અને સચોટ માધ્યમ છે ભગવાનનું નામ સ્મરણ. તો બાળ મિત્રો, આપણે પણ આપણા મનને શાંત અને સ્થિર કરીએ ધૂન અને પ્રાર્થનાના માધ્યમ દ્વારા. Swami Ma
બાળ મિત્રો, હવે આપણે સૌ સમૂહ ગાનમાં જોડાઈશું. નિત્ય ઉઠીને સ્નાન કરીશ, સ્નાન કરીને પૂજા કરીશ, પ્રદક્ષિણા દંડવત પ્રણામ, પૂજા વિના પાણી હરામ. તિલક ચાંદલો રોજ કરીશ, મસ્તક ઊંચું રાખી રહીશ, માર્ગે મળતા સૌ મિત્રોને જય સ્વામી નારાયણ કહીશ. આરતી અષ્ટક રોજ કરું, પ્રેમે પ્રભુને થાળ ધરું, નવધા ભક્તિ જીવન સાર, સુખ છે એમાં અતિ અપાર. મારો સંકલ્પ, અમારો સંકલ્પ, મારો સંકલ્પ, અમારો સંકલ્પ. એકાદશીનું વ્રત મહાન, એ તપથી રાજી ભગવાન, નિર્જળ સજળ કે ફળાહાર, અનાજનો તો મૂકો વિચાર. સદવાંચનથી જીવન ઘડીશ, વચનામૃત વાતો વાંચીશ, નિત્ય સત્સંગ પાઠ કરીશ, સત્સંગ વિહાર પરીક્ષા દઈશ. બાળ સભામાં નિત્ય જઈશ, શિસ્ત રાખી શ્રવણ કરીશ, જે શીખવે ને જે સમજાવે તે જીવનમાં પાર કરીશ. મારો સંકલ્પ, અમારો સંકલ્પ, મારો સંકલ્પ, અમારો સંકલ્પ. નિત્ય કરું હું ઘર સભા, બધા દુઃખની એક દવા, ઘર બને શાંતિનું સ્થાન, પ્રમુખ સ્વામીનું છે વરદાન. ઘણું ઘણું સત્સંગ કરું, માત પિતાની સેવા કરું, સારા મિત્રનો સંગ કરું, પ્રમુખ સ્વામીને રાજી કરું. શ્રીજીએ જે દીધા નિયમ, તેમાં રાખું મુજ તન મન, શિક્ષાપત્રી જીવન બને, ટેક આપણી અડગ રહે. મારો સંકલ્પ, અમારો સંકલ્પ, મારો સંકલ્પ, અમારો સંકલ્પ. ગુરુજી મારા પ્રમુખ સ્વામી, મુજમાં નહીં રાખે ખામી, અંતરમાં નિત યાદ કરું, આજ્ઞા પાળી રાજી કરું. સદાય સૌને નમતો રહું, સૌની સેવા કરતો જઉં, સંપી સૌનો ગુણ જ લઉં, સ્વામી શ્રીજીનો વાલો થઉં. ડુંગળી લસણ ખવાય નહીં, ઈંડા માંસ અડાય નહીં, બજારું ખાવું પીવું તજું, તનથી મનથી શુદ્ધ રહું. મારો સંકલ્પ, અમારો સંકલ્પ, મારો સંકલ્પ, અમારો સંકલ્પ. દારૂ માટી ચોરી અવેરી કુસંગ કદી કરું નહીં, પંચવ્રતો દીધા શ્રીજીએ, એનું પાલન મૂકું નહીં. પ્રાપ્તિ મહિમા આત્મવિચાર, રાજીપોને સાંખ્ય વિચાર, કરતા હરતા શ્રીજી મનાય, ત્યારે શ્રીજી સુખે ભજાય. માત પિતાના છે ઉપકાર, રોજ કરું હું નમસ્કાર, આજ્ઞા પાળું સેવા કરું, રાજી કરીને આશીષ લઉં. મારો સંકલ્પ, અમારો સંકલ્પ, મારો સંકલ્પ, અમારો સંકલ્પ. ભણવામાં હું ધ્યાન દઈશ, ઘેર આવીને લેસન કરીશ, સારો અભ્યાસ કરતો રહું, સૌથી પહેલો નંબર લઉં. સારા મિત્રો સારી વાત, ખરાબ મિત્રોનો નહીં સાથ, વિવેક ચૂકી ટીવી ન જો, સિનેમાનો નહીં વિચાર. જીવન વ્યસન મુક્ત રાખીશ, બીડી તમાકુ દૂર નાખીશ, ગુટકા પાન મસાલા હરામ, દારૂને તો દૂર સલામ. મારો સંકલ્પ, અમારો સંકલ્પ, મારો સંકલ્પ,
कसरत प्राणायाम, પૂરતા કરું ભોજન આરામ, સ્વાસ્થ્ય સદાય સારું રહે, તો જ શરીરથી કાર્ય બને. ધમાલ મસ્તી કરીશ નહીં, કોઈને હાનિ કરીશ નહીં, શિસ્ત છે માનવની શાન, એહ વિના સૌ પશુ સમાન. મારો સંકલ્પ અમારો સંકલ્પ, મારો સંકલ્પ અમારો સંકલ્પ. ઘર હોય કે શાળા હોય, શરીર હોય કે કપડાં હોય સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા, સમૃદ્ધિ ને સુખ સદા. નિયમિતતા મુજ જીવનમાં, સ્નાન ધ્યાન ને પૂજામાં, ભણવું રમવું બાળ સભા, સમય સાચવી કરું સદા. સાદાઈમાં તો સુખ જ સુખ, મોજ શોખમાં દુઃખ જ દુઃખ, ગુરુ હરીને સદાઈ ગમે, ખોટો બક્કો તજો તમે. મારો સંકલ્પ અમારો સંકલ્પ, મારો સંકલ્પ અમારો સંકલ્પ. કદીય જુઠ્ઠું બોલીશ નહીં, ચોરી કદીય કરીશ નહીં, પ્રામાણિક જીવન રાખીશ, વિશ્વાસુ સૌ તણો બનીશ. અરે બાળકો, તમારે મોટા થઈને શું બનવું છે? બહુ જ સરસ. તમારામાંથી કોઈને આઈએએસ ઓફિસર થવું છે, તો કોઈકને સારા ડૉક્ટર કે એન્જિનિયર બનવું છે, તો કોઈકને સફળ બિઝનેસમેન થવું છે, કાં તો કોઈકને અબ્દુલ કલામ સાહેબની જેમ મોટા સાયન્ટિસ્ટ થવું છે. પરંતુ આવી સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે સારું ભણવું ખૂબ જ જરૂરી છે, અને સારું ભણવા માટે સ્વસ્થ મન તેમજ સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત સ્વાસ્થ્યની જરૂર છે. તો આપણે આપણું સ્વાસ્થ્ય કેવી રીતે સારું રાખી શકીએ તે જાણીએ આજના મુખ્ય કાર્યક્રમ દ્વારા. कीटाणुओं ने बॉल फेंकी और तुम सब बच्चे आउट हो गए. भले ही तुम इस बार आउट हो गए, लेकिन अब रोगों के सामने स्वास्थ्य की गेम में कैसे सिक्स लगाई जाती है मैं तुम्हें सिखाऊंगा. कैसा लगा? वाह वाह नहीं, मेरा नाम है डॉक्टर हेल्थ. डॉक्टर हेल्थ BAPS स्वामीनारायण बाल मंडल की स्वास्थ्य रक्षक वीडियो सीरीज. राज है, जरूर कुछ राज है. राज की बात कर रहे हो ना? नहीं नहीं, राज की बात कर रहा हूँ. मैं भी तो वही कह रहा हूँ. अरे राज नहीं, राज. राज रहस्य, राज का राज. ओह, मुझे भी यही लगता है. फोर्थ में 60%, फिफ्थ में 70%, सिक्स्थ में 80%. और लगता है राज सेवंथ में भी 90% से ऊपर ला देगा. सच बात है. ये कोई मेरा या तुम्हारा? मेरा भी तो काम नहीं है. राज की इस सफलता के पीछे जरूर कुछ रहस्य है. हाँ, राज. तो ये बात है राज का राज. चिंटू, मिंटू, मिंटू, जल्दी आओ. सुनो सुनो. क्या हुआ मोंटू? क्यों इतना उतावला हो रहा है?
अरे बात क्या है मोंटू? राज के पास राज है। राज के पास राज? क्या बक रहा है मोंटू? अरे राज के पास राज है। राज, रहस्य। उसकी सफलता के पीछे उसके ट्यूशन टीचर नहीं है। राज कुछ और है। मुझे भी लगता था कुछ ना कुछ तो होगा, वरना 4th तक पढ़ने में हमारे जैसा ही था। लेकिन अचानक उसके पास राज है, कुछ जानना ही पड़ेगा। चलो उसे ही पूछे। हाँ, चलो राज के पास। राज, तुम्हारे पास राज क्या है? कल तक तो तू पढ़ाई में हमारे जितना ही मार्क्स लाता था और अचानक नहीं, 4 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, समझे? कोई सिद्धि अचानक नहीं मिलती। तो हमें भी वो राज बताओ ना। नो 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 नो, वो तो मेरा सीक्रेट है, रहस्य है। हमें नहीं बताएगा तू? रहने दे चिंटू। देख राज, सीधे सीधे बता दे, वरना क्या? हाँ मोंटू। चिंटू पकड़ से। देख मोंटू देख, मुझे पकड़ना मत, पकड़ना मत। ठीक है, मैं पकड़ता हूँ। पकड़, जोर से पकड़, छोड़ना मत। देखता हूँ कैसे नहीं बताता ये राज। बोल राज बोल, तेरी सफलता का राज क्या है? ये ले, आज का राज जाना इतना आसान नहीं है, समझे? तुम चारों मुझे नहीं जीत सकते। I have a secret। सीक्रेट? कुछ तो करना होगा। कुछ तो जरूर करना होगा। तो चलो अब कुछ प्लान बनाते हैं। उसकी सीआईडी चालू करो। मंटू, पिंटू, तुम सुबह 6 से 12 बजे तक और मैं और मिंटू 12 से रात के 10 तक। ओके? ओके। राज के पिताजी आ गए। अरे बच्चों, क्या कर रहे हो यहाँ? कुछ नहीं अंकल, कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर यहाँ क्यों हो? कुछ नहीं, राज का राज जानना चाहते थे। क्या क्या कहा? कुछ नहीं अंकल, सॉरी अंकल। हाँ, हम जाते हैं। हाँ, हम जाते हैं। जरूर कुछ राज है, पर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ हुआ? चिंटू, किसी का राज जानना आसान नहीं होता। लगता है हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। चलो तुम तीनों नीचे और मैं ऊपर चढ़ता हूँ। हम नीचे खड़े हैं, तुम हमारे कंधे पे चढ़ जाओ। आवाज कम, काम ज्यादा। कुछ दिखने दो। अरे पिंटू, कुछ दिखा क्या? बोलो मत, बहुत कुछ दिख रहा है, बस देखने दो। इतना तो मुझे याद रखना ही पड़ेगा। अरे अरे ये क्या? अरे चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। आजकल तो बच्चे भी चोरी करने लगे। अरे चोर चोर, पकड़ो। अब मुझे क्या हो गया? मर गया।
दादाजी हमें माफ कर दो, हम लोग चोर नहीं है, हम तो राज के पिता हैं। ऐसे होते हैं मित्र? किसी के घर में इस तरह देखना है कोई? शर्म नहीं आती? इसका कारण राज है दादाजी। राज, तू कारण है? दादाजी वो तो बात क्या है? और उसके पिता को भी। तो ये बात है, योगा के बारे में जानना है। राज को और उसके पिताजी को भी यह राज मैंने ही तो सिखाया है। क्या आपने सिखाया? तो आप भी हमें सिखा दो ना। नहीं नहीं नहीं, राज ही सिखाएगा, मैं ध्यान रखूंगा। देखो देखो, इस उम्र में भी मैं बिल्कुल फिट हूँ ना। ऐसा नहीं करते बेटे। अपना ज्ञान किसी को देने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं। दूसरों के सुख में ही हमारा सुख है। सॉरी दादाजी, कल हमारी 3 दिनों की छुट्टी है, मैं इनको सब सिखा दूंगा। यस, ये हुई ना बात। अब आएगा मजा। थैंक यू दादाजी, थैंक यू राज। और राज, हम क्या लेके आए? एक आसन। और क्या पहन के आए? ढीला पायजामा। हम क्या पूर्व तैयारी करके आए राज? वो तो मैं कल बताऊंगा। हाँ, ये तो बता कितने बजे आए? सुबह 7 बजे। लेकिन 8 बजे तो मैं उठता हूँ। तो तुम मत ही आना। नहीं नहीं, मैं आऊँगा सबसे पहले। देखो दोस्तों, कल से 3 दिन हम जीवन की बहुत महत्वपूर्ण बात सीखने जा रहे हैं। सीक्रेट, रहस्य, सफलता का राज। रहस्य। हाँ, सीक्रेट। इस ज्ञान को अपनाओगे तो नो थकान, नो डिप्रेशन, नो आलस और नो मूड ऑफ। वाह जी वाह, तब तो बहुत मजा आएगा। हाँ, इससे रहेगी हमेशा ताजगी, जबरदस्त याद शक्ति। शरीर तुम्हारा ऐसा फिट बन जाएगा कि तुम उससे जो चाहो सफलता पा सकोगे। थैंक यू दादाजी, थैंक यू राज। चलो भाई, मैं तो अभी सोने जा रहा हूँ, कल जल्दी उठना भी तो है। अरे रुको रुको रुको, पहले चलो मेरे कमरे में। दादाजी ने योगा अभ्यास के दौरान जिन सूचनाओं का पूर्णतः ध्यान रखने को कहा है, उसकी तुम्हें जानकारी दे दूँ। हाँ, योगा के इस राज को पाने के लिए सूचनाओं का पालन अनिवार्य है। तो चलो चलो, जल्दी चलो। चलो चलो मोंटू, पिंटू, चिंटू एंड मिंटू, ये लो डायरी और पेन, लिखो सूचनाएं। सूचना नंबर 1, पेट खाली होना चाहिए। पेट खाली होना चाहिए। चिंटू, खाली यानी समझे? दादाजी, मेरा पेट तो खाली ही रहता है। ऐसा नहीं, ये योग का अभ्यास है। भोजन के 3 घंटे बाद, पानी पीने के 20 मिनट बाद के पेट को खाली कहा जाता है। और हाँ, पेट में भी मल नहीं होना चाहिए। ओके दादाजी। तो अब सूचना नंबर 2, सब अपना अपना आसन लाएंगे, ऐसा। बराबर। सूचना नंबर 3, देखो, याद रखो, हमें अपने शरीर के साथ जरा भी जबरदस्ती नहीं करनी। राज सुनो, दूसरी सूचना है कल देना। हाँ, ठीक है दादाजी। चलो अब सब जाओ और सो जाओ, कल जल्दी आना राज के राज को जानने के लिए। सफलता का राज, सीक्रेट, एक अद्भुत रहस्य। जय स्वामीनारायण दादाजी, जय स्वामीनारायण राज। सबको जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। अब देखो, सब थोड़ा थोड़ा अंतर रखकर आसन बिछा दो और बैठ जाओ। आज है हमारा पहला दिन। कल की सूचना ओके है ना? खाली पेट। जी हाँ। तो सबसे पहले हम कुछ आसन करेंगे। तुम सबके साथ मैं भी आसन करूँगा। कुछ भूल होगी तो दादाजी सुधारेंगे। बराबर? बराबर। योगा अभ्यास के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने हमें
ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया है कि पूरी दुनिया आज योगा कर रही है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पद्मासन। इस आसन से एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान सिद्ध होता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, मानो किसी आनंद के सागर में डूब गए हो। इस आसन को पूर्णतः सिद्ध किया जाए तो हमारी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो सकती है। ये कुंडलिनी क्या है? पिंटू, एक दिन में सब नहीं पता चलेगा, ये तो शुरुआत है। तो चलो, सबसे पहले अपना दाहिना पैर बाईनी जंघा पर रखो और बायां पैर अपनी दाहिनी जंघा पर इस तरह रखो। अरे मर गया। क्यों पिंटू, हो रही है ना तकलीफ? ये आसन तो बहुत ही मुश्किल था। बाप रे। देखो 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 बेटे, पहले थोड़े दिन तकलीफ होगी, हाँ, फिर शरीर सेट हो जाएगा। अब हाथ की उंगलियों को ऐसे करो, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ज्ञान मुद्रा? वाह भाई वाह, अब हमें ज्ञान होगा। अब हाथ को घुटने पर इस तरह रखो, शरीर बिल्कुल सीधा और मेरुदंड एकदम सीधा, पर जोर मत करना, सहजता से। देखो देखो देखो, मुंह भी सीधा। अब आंखें बंद, गहरे श्वासोच्छ्वास। जितना भी हो सके ऑक्सीजन अंदर ले लो और जितना भी हो सके बाहर निकालो, ऐसे। तो मित्रों, सब कुछ भूल जाओ, सब चिंता छोड़ दो, बस दोनों प्रवारों के बीच में यहाँ ध्यान केंद्रित करो और भगवान को याद करो। वाह, ये तो सचमुच कमाल है। अब दूसरा कमाल मैं सिखाऊंगा। अब पहले उल्टे सो जाओ, ऐसे। दोनों हाथों से पैर को ऐसे पकड़ो। अब बिल्कुल धीरे धीरे खींचो। क्यों चिंटू, दुखता है ना? बहुत दुखता है भाई, बहुत दुखता है। ये आसन तो बहुत कठिन था। तो एक काम करो, तुम ये आसन मत करो। तो सब याद रखो, हमें हमारे शरीर के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। थोड़ा भी अगर दुखता है तो दर्द मीटे उसके बाद आसन करो। ओके? ओके राज, ओके। इस तरह 2 मिनट तक इस आसन में रहो। धीरे धीरे सांस लेना, धीरे धीरे छोड़ना, फिर थोड़ा आराम, फिर दूसरी मिनट। इस तरह 2-3 बार इसका आवर्तन करो। बड़ा मजा आ गया, बड़ा मजा आ गया। ये वाह दादाजी वाह, बहुत मजा आ रहा है। ये क्यों ना आए मजा? इसका भी एक साइंस है। पूरे दिन हम शरीर को एक ही तरह मोड़े हुए रखते हैं। दिन में कम से कम 2-3 मिनट शरीर को ऐसे रिवर्स भी मोड़ना चाहिए। हाँ, तो अब बारी है सर्वांगासन की। अब सीधे लेट जाइए, दोनों पैर इस तरह ऊपर करिए, हाथों से कमर को सपोर्ट दीजिए, शरीर बिल्कुल सीधा। दादाजी, अगर आप नहीं मिले होते तो हम बहुत कुछ गवा देते और हम पूरी जिंदगी तंदुरुस्ती नहीं पाते। यही तो बात है बेटे, आज पूरी दुनिया हमारे इस योग का लाभ लेती है और हम ही रह जाए। हाँ?
देखो दोस्तों, इन आसनों से हमारे अंदर बाहर के सभी अंग ऊर्जावान और प्रफुल्लित होते हैं। याद शक्ति बढ़ती है, स्नायुओं की स्थिति स्थापकता बढ़ती है, मेरुदंड मजबूत बनता है, चर्बी घटती है और पाचन तंत्र ठीक होता है। पर मुझे टॉयलेट में बहुत देर लगती है राज। इसके लिए एक स्पेशल आसन है। देखो, इस तरह बैठ जाओ। हाँ, तुम सब भी करो। दोनों पैर की पहली उंगली एक दूसरे पर, हाथ घुटने पर, ऐसे ऐसे। शरीर सीधा। खाना खाने के बाद 5 मिनट तक ऐसे बैठो। पर दादाजी, आपने अभी तो खाकर 3 घंटे बाद आसन करने को कहा था। सॉरी, भूल हो गई। आसन तो कुल मिलाकर 84 से भी अधिक है, पर यह एक ही ऐसा आसन है जो खाकर सीधा भी किया जा सकता है। यह है स्पेशल फॉर मिंटू। थैंक यू दादाजी, थैंक यू। अब पेट ढीला हो रहा है। हम बच्चों के लिए ये 3 आसन पर्याप्त है। सुंदर, गुड। आज का अध्याय समाप्त। कल प्राणायाम सीखेंगे। प्राणायाम वो क्या होता है? वो सब कल बताएंगे। राज का दूसरा राज कल खुलेगा। डेंग डेंग। तो सबने प्रैक्टिस की थी? हाँ। दादाजी आज बाहर गए हैं, तो पिताजी सिखाएंगे। बोलो, अब सब अपना अपना अनुभव बोलो। हाँ बच्चों, बताओ कैसा लगा तुम्हें? सच कहूँ तो अंकल, टॉयलेट का टाइम कम हो गया। एकदम रिलैक्स। पूरे दिन थकान ही नहीं लगी और पूरे दिन मूड ऑफ भी नहीं हुआ। अंकल, ये हमने नहीं सीखा होता तो हमारा क्या होता? हाँ, तो आज हम प्राणायाम सीखेंगे। ऐसे तो कई प्राणायाम है, पर उनमें से हम सीखेंगे सिर्फ 2 प्राणायाम, कपालभाति और भ्रमरी प्राणायाम। तो सब पद्मासन या सुखासन में बैठ जाइए। ये सुखासन क्या है? सुखासन यानी पलटी। मुझे तो शुरुआत में वही करने पड़ेगी। अब आती है ज्ञान मुद्रा। शरीर बिल्कुल सीधा, आंखें बंद, ध्यान श्वासोच्छ्वास पर। पेट से अंदर धक्का देना है, हर धक्के पर सांस बाहर निकालनी है, धीरे से पर अच्छी तरह। 2 सेकंड में 2 से ज्यादा धक्के नहीं होने चाहिए, समझे? मोंटो बस करो। ये प्राणायाम 5 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए। योगासन और प्राणायाम के कुछ नियम होते हैं, उसका पालन नहीं हुआ तो नुकसान भी हो सकता है। सॉरी अंकल। देखो बच्चों, हमारा शरीर एक जैविक मशीन है। जिस तरह मशीन को इलेक्ट्रिसिटी, आराम और सर्विस चाहिए, उसी तरह हमारे शरीर को भी एनर्जी, आराम और एक्सरसाइज चाहिए। इसमें से एनर्जी तो हम देते ही हैं, आराम देने में भी हम कुछ कम नहीं रखते। सिर्फ सर्विस यानी कि एक्सरसाइज बाकी रह जाती है। हाँ, ये सर्विस यानी योगाभ्यास। तो चलो अब दूसरा प्राणायाम, भ्रमरी प्राणायाम। पहले
इस तरह बैठो। हाथ को इस तरह आंखों पर, कान पर और नाक पर रखो। गहरी सांस लो और भौरे की तरह आवाज करते हुए सांस बाहर निकालो। चलो अब बहुत हुआ। हंसने का आनंद पूरा हो गया हो तो अब प्राणायाम का आनंद लो। वाह, सचमुच सब योगी जैसे लगते हैं। मैं भी। हाँ हाँ, तुम भी बहुत अच्छे। बस यूं ही आगे बढ़ते जाओ जीवन के हर एक क्षेत्र में। भगवान के आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ है। तो चलो अब कल मिलेंगे तीसरे और अंतिम चरण में। राज का तीसरा राज कल खुलेगा। डिंग डोंग। आओ आओ बच्चों, आ जाओ, सब आ जाओ। वाह वाह बच्चों, देखो कल की सब बातें मैंने जान ली है। बहुत अच्छे। दादाजी देखो ना, मेरा शरीर कम हुआ कि नहीं? हुआ है लेकिन 5 ग्राम। आप भी ना दादाजी। तो चलो आज का अध्याय शुरू करते हैं। क्या हुआ मोंटू बेटे? क्या कहूँ दादाजी, कल मुझसे प्रैक्टिस नहीं हुई। घर के सभी घूमने जा रहे थे तो मैं भी उनके साथ चला गया। तो क्या हुआ, चिंता मत करो बेटे। सच कहूँ दादाजी, हमारे घर में ये बार बार होते ही रहता है। सुबह योगासन और प्राणायाम नहीं हुए तो मेरा क्या होगा दादाजी? चिंता मत कर दोस्त, सुबह अगर रह गया तो शाम को भी कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है राज? सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार? जी हाँ, यदि किसी के पास समय नहीं है तो वो सूर्य नमस्कार करे। इसमें 7 आसनों का और अष्टांग नमस्कार का लाभ मिलता है। ऑल इन वन। क्या बात करते हो? तो मुझे पहले सिखाओ। सबको सिखाएंगे। चिंटू, हमें फैन चालू नहीं करना है, समझे? और क्यों राज, मुझे बहुत गर्मी लगती है यार। देखो चिंटू, योगाभ्यास के दौरान हमारे शरीर में विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है। यदि हम नीचे आसन नहीं रखते तो वो जमीन में चली जाती है। वैसे ही हवा सीधी हमारे शरीर पर आए तो विद्युत ऊर्जा कम हो जाती है। फैन धीरे धीरे घूमता है। हाँ, यदि दूर घूमता हो तो चलता है। सॉरी दादाजी। अब सब मेरी ओर देखो और सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप सीखो। पूर्व या पश्चिम की तरफ अपना मुंह रखो। पहले प्रणामासन, सांस बाहर। अब हस्त उत्तानासन, सांस अंदर। तीसरा हस्त पादासन, सांस बाहर और पैर को इस तरह पकड़ो। बाद में पाद प्रसारणासन, सांस अंदर और इस तरह। अब अधो मुख श्वानासन, सांस बाहर और इस तरह। छठे स्टेप में सांस स्थिर। यह है अष्टांग नमस्कार। अब भुजंगासन, सांस अंदर। 8वां अधोमुख श्वानासन, सांस बाहर। अब अश्व संचालनासन, सांस अंदर।
10वां हस्तपादासन। तीसरा स्टेप रिपीट, सांस बाहर। अब दूसरा स्टेप रिपीट, हस्त उत्तानासन, सांस अंदर। अब अंतिम स्टेप, सांस बाहर। बराबर? बराबर। राज, फिर एक बार दिखाओ ना। इस तरह कितनी बार करना है? कम से कम 5 बार। पर राज, इसके फायदे? फायदे ही फायदे। 7 आसनों का लाभ एक साथ, ऑल इन वन। वाह जी वाह, ऑल इन वन। इस सारे योगाभ्यास से हमारे शरीर का रुधिराभिसरण तंत्र, पाचन तंत्र, चेता तंत्र सब चार्ज हो जाते हैं। सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां पुनर्जीवित हो जाती है। हार्ट अटैक, बीपी, डायबिटीज, मोटापा, मूड ऑफ, डिप्रेशन, ऐसे रोग तो हम तक आ ही नहीं सकते। और मार्क्स मिलते हैं जितने चाहे उतने। थैंक यू दादाजी, थैंक यू राज। अब तो राज का राज हमारे पास आ गया। पर क्या मिंटू? मोन्टू, 30 दिन तो हो गए, पढ़ने में तो लाभ हुआ है, पर अभी भी राज के जैसी फिटनेस और उत्साह हम में नहीं दिख रहे हैं। अभी कुछ राज बाकी तो नहीं है ना? कुछ हो सकता है। तो एक काम करते हैं, चलते हैं दादाजी के पास। चलो। हाँ हाँ, चलो दादाजी के पास चलो। आओ 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 बच्चों आओ। अब बताओ कैसा महसूस होता है? बहुत ही अच्छा दादाजी। दादाजी, राज घर पे तो नहीं है ना? नहीं। कहाँ गया है वो? खेलने? क्या बात है, राज खेलने गया है? जी हाँ, वो रोज 20 से 30 मिनट खेलता है। क्या बात करते हो दादाजी? हाँ, जब तुम बैठकर टीवी देखते हो, वीडियो गेम खेलते हो, कंप्यूटर पर सर्फिंग करते हो, तो वो बाहर जाकर खेलता है। लगता है यही राज सीखना बाकी था। हाँ, यही उसका अंतिम राज है जो उसने तुम सबको नहीं सिखाया था। देखो बच्चों, आजकल टीवी, वीडियो गेम, कंप्यूटर आदि के कारण हम सिर्फ बैठे ही रहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बड़ा हानिकारक है। हमें इन सब को छोड़कर दिन में एक बार तो खेलना चाहिए। इस तरह चलो चलो बच्चों, हम गोल गोल घूमते हैं। शुरू, घूमो। घूमते रहो। वाह 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 चिंटू, वाह, घूमो, घूमते रहो। अरे घूमो, चालू रखो, तुम्हारा घूमना चालू रखो। अरे ऐसे, अरे घूमो बेटे। अरे तब तक खेलना चाहिए जब तक हमें पसीना आ जाए। बस बस बच्चों, बस। अरे हंसो मत बच्चों, तुम छोटे हो, अभी तुम्हारे शरीर के अंग बन रहे हैं। तुम इस तरह खेल कूद करोगे तो फेफड़े मजबूत होंगे, हार्ट मजबूत होगा, जो तुम्हें जिंदगी भर साथ देगा। तुम सब ये क्या दादाजी, आपने तो मेरा अंतिम राज भी बता दिया। अरे राज, इसमें क्या छिपाना, सभी तेरे ही तो दोस्त हैं, तुम्हें जिंदगी भर याद रखेंगे। सॉरी दोस्तों, पर अगर तुम चाहो तो कल से इस राज के अंतिम राज खेलकूद में भी शामिल हो सकते हो। नो टीवी, नो वीडियो गेम, नो सर्फिंग। तैयार हो?
हाँ, हम सब तैयार हैं। नो टीवी, नो वीडियो गेम, नो सर्फिंग। तो चिंटू और मिंटू पिंटू और मोंटू सभी राज जान गए ना? और अब सबके मार्क्स आते हैं 80% से ज्यादा। बच्चों, क्या आप भी डब्बू में से जीनियस होना चाहते हो? तो राज के राज को अपनाओ। योगा अभ्यास करो, खेलो कूदो और बनो विद्यार्थी नंबर 1। जी हाँ, तो बनो विद्यार्थी नंबर 1। હવે બાળકો તૈયાર થઈ જાઓ એક સરસ મજાની એક્ટિવિટી માટે. આજે આપણે એક એવી એક્ટિવિટી કરીશું કે જેથી તમે તમારા શરીરને સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત બનાવી શકો. પરંતુ આ કસરતની એક્ટિવિટી કરતાં પહેલાં ધ્યાનમાં રાખવાની અગત્યની સૂચનાઓ. કસરત અથવા યોગાસન હંમેશા ખાલી પેટે જ કરવા. બારી ખુલ્લી હોય કે હવા ઉજાસવાળી જગ્યા હોય ત્યાં જ કરવા. ખુલ્લા કપડાં પહેરવા, જીન્સ કે સ્કિન ટાઈટ કપડાં ન જ પહેરવા. કસરત અથવા યોગાસન કરતી વખતે વધુ પડતું જોર કે ઉતાવળ ન કરવી. આસન રાખીને તેની પર યોગાસન કરવા. સવારનો સમય બેસ્ટ છે, પરંતુ સમય પ્રમાણે સાંજે કરી શકાય. તો બાળમિત્રો તૈયાર થઈ જાઓ. સૌપ્રથમ આપણે પોતાની જગ્યા પર ઊભા થઈને સૂર્ય નમસ્કાર કરવાના છે. તો હવે જેમ સ્ક્રીન ઉપર બતાવવામાં આવે તેમ આપણે સૌએ કરવાનું છે. Step 1, Step 2, Step 3, Step 4, Step 5, Step 6, Step 7, Step 8, Step 9, Step 10, Step 11, Step 12. તો બોલો જોઈએ બાળમિત્રો, સૂર્ય નમસ્કારમાં કેટલા સ્ટેપ હોય છે? હા, 12 સ્ટેપ. આપણે બધાએ કેવી સરસ રીતે 12 સ્ટેપ પૂરા કર્યા. તો બાળમિત્રો, શું તમને ખબર છે સૂર્ય નમસ્કાર કરવાથી મન શાંત બને છે અને એકાગ્રતામાં પણ વધારો થાય છે. આપણી આ રોજિંદી દિનચર્યામાં સૂર્ય નમસ્કાર કરવાથી શક્તિમાં પણ વધારો થાય છે. ખાસ કરીને પરીક્ષામાં સ્થિરતા રહે છે અને સહન શક્તિમાં પણ વધારો થાય છે. દરરોજ આપણે ઓછામાં ઓછા 5 સૂર્ય નમસ્કાર તો કરવા જ જોઈએ. તો બાળમિત્રો, હવે આપણે બધાએ દોડવાનું છે. અરે ઊભા રહો, દોડવાનું છે પણ ક્યાંય જવાનું નથી. આપણે સૌએ આપણી જગ્યા પર જ દોડવાનું છે. તો હવે આપણને જેમ વિડીયોમાં બતાવવામાં આવે તેમ આપણે સૌએ કરવાનું છે. બાળમિત્રો, રોજિંદી કસરત સ્નાયુઓ માટે શ્રેષ્ઠ કાર્ય કરે છે. કરોડરજ્જુ અને હાથ પગને સ્થિતિસ્થાપક બનાવે છે, તેમજ આપણા હાડકાઓને પણ શ્રેષ્ઠ બનાવે છે. શરીરમાં લોહીનું પરિભ્રમણ પણ ખૂબ જ સારું થાય છે. આ તમે શરૂઆતમાં 2 થી 3 મિનિટ સુધી કરી શકો અને પછી ધીરે ધીરે સમય વધારીને 20 થી 25 મિનિટ સુધી કરી શકો. તો બાળમિત્રો, બધા બેસી જાઓ. તો પ્રાણાયામ કરવાથી શરીરમાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ વધે છે, ઇમ્યુનિટીમાં પણ વધારો થાય છે, એકાગ્રતામાં પણ વધારો થાય છે. એટલે જ તો આપણે સૌ દરરોજ પૂજામાં પ્રાણાયામ કરીએ છીએ. શરૂઆતમાં રોજ 5-5 વાર બંને પ્રાણાયામ કરવા જ જોઈએ અને પછી 1 થી 2 અને 5 મિનિટ સુધી કરી શકાય. તો બાળમિત્રો, હવે આપણે સૌ આજથી કસરત, સૂર્ય નમસ્કાર
અને પ્રાણાયામ કરીએ અને આપણા શરીરને તંદુરસ્ત બનાવીએ. હવે સમય આવી ગયો છે શેનો? હા, સરસ મજાની વાર્તાનો. તો ચાલો સૌ સાચું જ્ઞાન અને ઉપદેશ આપતી તેમજ સદ્ગુણોની પ્રેરણા આપતી એવી સરસ મજાની વાર્તા સાંભળીએ. ભગવાન આપણી સાથે જ છે. રાધેશ્યામ શેઠ ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા. એકવાર તેમણે મૂર્તિ સામે બેસીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, પ્રભુ, આપ એવો કોઈ ચમત્કાર બતાવો કે મારો તમારા પરનો વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા અતિ દ્રઢ થઈ જાય. બીજે દિવસે તેઓ નદી કિનારે ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરતા કરતા ફરતા હતા. અચાનક તેમણે જોયું તો નદીની રેતીમાં તેમના પગલાની સાથે બીજા 2 પગલા પણ સાથે સાથે પડતા હતા. પગલા જોઈ તેમને તરત વિશ્વાસ બેઠો કે બીજું કોઈ નહીં પણ મારા પ્રભુના પગલા છે. પછી તો આવું રોજ બનવા લાગ્યું. થોડા દિવસો બાદ પરિસ્થિતિ પલટાઈ. રાધેશ્યામ શેઠને ધંધામાં મોટી ખોટ ગઈ. ઘરના બધા જ તેમને છોડીને ચાલ્યા ગયા. છતાં તેમને ભગવાન ઉપરનો વિશ્વાસ અને ભક્તિ ન છોડ્યા. આવા સમયે જ્યારે તેઓ નદી કિનારે ફરવા ગયા ત્યારે તેમણે જોયું કે આજે માત્ર પોતાના જ 2 પગલા પડતા હતા. તેમને થયું કે મારી બુરી હાલતમાં ભગવાને પણ મારો સાથ છોડી દીધો. શેઠને થોડું ખોટું લાગ્યું, પણ તેમણે ભક્તિ અને સત્સંગ ન છોડ્યા. ભક્તિ અને સત્સંગના પુણ્ય પ્રતાપે ફરીવાર તેમની સ્થિતિ સુધરી. ઘરના બધા પાછા ફર્યા. રાધેશ્યામ શેઠ આ બધી ભગવાનની લીલા સમજીને જ રહેવા લાગ્યા. ફરી જ્યારે તેઓ નદી કિનારે ગયા ત્યારે તેમણે પાછા 4 પગલા જોયા. શેઠે ભગવાનને પૂછ્યું, હે પ્રભુ, આવું કેમ? દુઃખમાં તમે મારો સાથ કેમ છોડ્યો? ત્યારે ભગવાન પ્રગટ થઈને કહે, હું સુખ અને દુઃખ બંનેમાં તારી સાથે જ હતો. દુઃખમાં તને જે 2 પગલા દેખાતા હતા એ તારા નહીં પણ મારા હતા. તેવા સમયે મેં તને તેડી લીધો હતો, તેથી જ તો તું સ્થિર રહી શક્યો. શેઠ ભગવાનના ચરણોમાં નમી પડ્યા. બોધ, ભગવાન ભક્ત વત્સલ છે. સુખ અને દુઃખ બંનેમાં ભક્તોની સાથે જ રહે છે. આનંદ બ્રહ્માંડના રાજા એવા સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને ગુરુ પરંપરાને વધાવવાનો અવસર એટલે કે આરતી. તો હવે આપણે સૌ અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની આરતીમાં જોડાઈશું. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. દર્શન સર્વોત્તમ
સભાના અંતભાગમાં બે હાથ જોડીને ધ્યેય મંત્ર અને વિદાય શ્લોકનું ગાન કરીને સભાની પૂર્ણાહુતિ કરીએ. આવજો. આવતી બાળ સભા સુધીમાં સૌને જય સ્વામિનારાયણ. गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे. श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे. श्रीहरिं